Hello everyone. Today we'll be discussing PULLB 3 years entrance test of the year 2023. So we all know that there are 100 questions with 90 minutes and a negative marking of 1/4 of the marks for every wrong answer. Right? Let's begin with the very first question. First question is that of GK. It's a book and author question. The question asks, who wrote the book India Wins Freedom? The options are A. Akhilesh Tilotia, B. Amitav Ghosh, C. Maulana Abul Kalam Azad, D. A.B. Vajpayee. So the correct answer for this is option number C. Maulana Abul Kalam Azad. He wrote the book India Wins Freedom. He was one of the foremost leaders in the India's freedom struggle and was the first education minister of independent India. Okay, and others like Akhilesh Tilotia, he is an economist. Amitav Ghosh, he wrote the famous books like The Sea of Poppies and The Shadow Lines. Okay, and these are the famous books written by Amitav Ghosh. Okay, so this is an easy question, easy moderate question, because I think India Wins Freedom, it's related to freedom. So Maulana Abul Kalam Azad, if you do not even know, you can guess it. So I think this is a moderate easy question. Question number 2, again a GK question related to days and dates. The World Milk Day is celebrated on which date? The correct answer for this is option A, 1 June. It was established by FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, in 2001. And it obviously promotes dairy sector. So another date that is important is 5th June. 5th June is World Environment Day. So you should know this as well, okay? This is again, I think this is a moderate difficult question because World Milk Day is not so prominently used in while preparing for it. But again, it's an important question. Question number 3, again a GK question. Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as. The correct answer for this is option A, sericulture. So sericulture is the rearing of silkworms. Now we should also discuss other options. So aquaculture is the rearing of cultivation of aquatic organisms. Okay. Apiculture is related to beekeeping. And pisciculture is related to fish farming. This you can say aquatic organisms. Apiculture is bee, pisciculture is fish. Okay. Question number 4. Satriya is the classical dance. Again a GK question, classical dances पे पूछा गया है. So Satriya जो classical dance है वो कहाँ का है? B, Assam का. It's an easy question because it is one of the 8 classical dances recognized in 2000 and it was developed in Vaishnav monasteries of Assam, and Shankara Deva is also associated with Satriya. Other जो classical dances which are important are like Kathakali Kerala का, Kathak उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का. तो these prominent ones you should remember. So this is an easy question, rote learning question, and mostly people study this. So आप इसमें गलत नहीं करना चाहिए आपको. Question number 5, again a GK current affair question. Which festival is known as Mahakumbh of the East? तो इसका correct answer क्या है? Option number C, Ambubachi Mela. So Ambubachi is a festival. It is organized in Kamakhya temple of Assam, which celebrates the menstruation of the goddess there. ठीक है, तो वहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए दिस फेस्टिवल इज़ फेमस. इसके अलावा जो बाकी फेस्टिवल्स दिए हम एक बार उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं. तो जो बिहू फेस्टिवल है तो उसका वो कहाँ पर मनाया जाता है? अगेन वो असम में मनाया जाता है. तो ये असमीज़ कल्चर ही है. बट वॉट इट डील्स विद असमीज़ न्यू ईयर. ठीक है. इसके अलावा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में. एंड दिस इज़ नोन एज फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल. ठीक है. तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है जो नागालैंड में मनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स. ये इतना प्रोमिनेंट है. एंड जो लास्ट हमारा बच्चा है जो इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आता, वो होता है मुआत्सो नैंग. तो मुआत्सो मोंग कहाँ पर मनाया जाता है? ये अगेन नागालैंड में मनाया जाता है. एंड ये कब सेलिब्रेट होता है?
एनुअली इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमने 4 और अलग ऑप्शंस डिस्कस कर लिए। बट महाकुंभ ऑफ द ईस्ट क्या है? अंबुबाची मेला, जो असम में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ टेकन द हिस्टोरिक टास्क ऑफ डेकोरेटिंग द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस ने इसको डेकोरेट किया था। एंड अगर आपसे कैलीग्राफी पूछे तो कैलीग्राफी किसने की थी? वो की थी प्रेम बिहारी लाल ने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों ही है। रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर तो बिल्कुल ही अलग फील्ड में। रविंद्रनाथ टैगोर इज रिलेटेड टू लिटरेचर, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग और मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड है वो है डेकोरेशन नंदलाल बोस ने की एंड कैलीग्राफी प्रेम बिहारी लाल ने की। दिस इज़ अ जीके क्वेश्चन, हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। एंड दिस इज़ वेरी डूएबल क्वेश्चन, बिकॉज स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हम स्टार्ट ही इस सबसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर द फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड्स प्रेजेंटेड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1929, एंड इट वॉज फाउंडेड इन लॉस एंजलिस। आई थिंक दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज ये कोई नहीं पढ़ता कि फ़र्स्ट ऑस्कर अवार्ड्स कहाँ पर बनाए थे, कौन से दिन पे बनाए थे। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। सारे ऑप्शंस भी आजू बाजू के दिए हुए हैं, तो रोट लर्निंग का प्रॉपर क्वेश्चन है। इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, नहीं आता तो इट्स बेटर टू स्किप सच क्वेश्चन। ये आपको नेगेटिव मार्किंग ही देंगे और कुछ नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मिल्क ऑफ रबर प्लांट कॉल्ड? ये जीके का साइंस का क्वेश्चन है। आई थिंक इट्स एन ईजी क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लैटेक्स। तो जो इसका वाइट मिल्की पार्ट होता है, जो निकलता है मिल्की फ्लूइड, वो होता है लैटेक्स। एंड रेजिन जो होता है वो एक डिफरेंट प्लांट सक्रीशन होता है। रबर तो उन्होंने मेंशन ही किया, वो तो प्लांट ही है, उसका फाइनल प्रोडक्ट है। एंड पॉलीमर जो है उसका वो ब्रॉडर केमिकल टर्म है। तो जो उसका एक्चुअल वो बनता है लिक्विड, जो फ्लूइड निकलता है वो लैटेक्स होता है। अगला क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ नीम इज़? जीके का क्वेश्चन है ये। तो अगर आप देखेंगे सारे नाम, तो इन नामों से देखना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। बट हमें पता है कि मैंजीफेरा इंडिका तो नहीं है, बिकॉज ये हमने सबने पढ़ा, दिस इज़ मैंगो। इसके अलावा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इट्स अजाजीरैक्टा इंडिका। ये नीम को बोलते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मॉडरेट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट अगर हमने नॉर्मल अच्छी तरीके से PU-LLB की तैयारी की है तो हम जीके में कुछ साइंटिफिक नेम्स पढ़ते हैं, हमें सबके याद नहीं करने होते, एंड उन कुछ में से ये प्रोमिनेंट वाले हैं। बाकी में भी बता, जो फिकस रिलीजियोसा है ये है पीपल। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको तुक्का मानो तो पीपल की हम पूजा करते हैं, एंड यहाँ पर रिलीजियोसा लिखा हुआ है, रिलीजन जैसा कुछ लिखा हुआ है, तो इससे तुक्का मार सकते हैं। ऑक्यूमम टेन्यूफ्लोरम, ये क्या है? ये है तुलसी। ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई वुड से इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट? ऑप्शंस क्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें पता है इंडिया का डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, एंड जो वर्ल्ड में जो 3 डिमार्केशन है, इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उन्होंने पूछा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी स्टेट्स में से पास करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कर्नाटका तो नहीं हो सकता, उड़ीसा भी नहीं है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, बट ये मध्य प्रदेश से निकलता है, महाराष्ट्र से भी नहीं निकलता। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, मध्य प्रदेश। तो ये 8 स्टेट्स में से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इन 8 स्टेट्स को याद कर लो, इनको रट्टा लगा लो, दिस इज ईजी डूएबल क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू फुली रन और सोलर पावर? तो अभी तक हमारे जीके के क्वेश्चंस थे, एक हमारा अभी आ गया है करंट अफेयर का क्वेश्चन। फर्स्ट वैसे ही PU के फेवरेट होते हैं, तो जब भी आप न्यूज़ में करंट अफेयर्स में कुछ भी फर्स्ट पढ़े तो उनको फटाफट से याद कर ले, बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है सी, कोचिन। तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो केरला में है, ये फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से जीके हिस्ट्री का है, हु लेड महड़ सत्याग्रह? तो महड़ सत्याग्रह किसने लॉन्च की थी? उसका करेक्ट आंसर है BR अम्बेडकर, क्योंकि ये महाराष्ट्र में थी, एंड हम सबको पता है ये अनटचेबल्स के पब्लिक वाटर सोर्सेज को एक्सेस करने के ऊपर थी। एंड ये हम जब भी अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड पढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि महड़ सत्याग्रह के बारे में कि वो क्यों हुआ लॉन्च,
तो आप आई थिंक डिराइव कर सकते हैं बी आर अम्बेडकर को. दिस इज़ अ मॉडरेट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा वॉज मेड इन विच एक्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ये जो फर्स्ट एक्ट पास की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश मोनार्की ने, वो थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. एंड इसी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा बनी थी. एंड इनमें जो हमारा फर्स्ट CGI बनाया गया था, CGI तो क्या, चलो फर्स्ट चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा का, वो था एलिजा एम्पेयर. तो ये भी हम सब पढ़ते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना हिस्ट्री को, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को. तो ये भी आई थिंक दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन. आप थोड़ा एक्ट्स में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अगर पढ़ा होगा ध्यान से तो हम ये कवर करते हैं अपनी क्लासेस में, तो ये डूएबल है. बाकी एक्ट्स की भी हम थोड़ा सा एक बार पढ़ ले. तो ये हमारे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म से रिलेट करता है. जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये हमारा डुअल कंट्रोल सिस्टम से डील करता है. एंड जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है ये ट्रेड और मिशनरी पावर्स से डील करता है. तो हम इनके डिटेल्स में अभी नहीं जा सकते बिकॉज बहुत लंबी हो जाएगी, बट हाँ इन सब के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उन सबको याद करना आई थिंक इम्पॉर्टेंट है. अगला क्वेश्चन है जीके का. हु डिस्कवर्ड एक्सरेज. इसका करेक्ट आंसर है बी, विल्हेम रॉन्गटन. आई थिंक दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. आपको एग्जैक्टली याद तो नहीं आएगा एकदम से, आप थोड़ा तुक्का मार सकते हैं कि फराडे नहीं होना चाहिए, मैक्सवेल नहीं होना चाहिए, हर्ट्ज नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये थोड़े अलग अलग फील्ड से डील करते हैं एंड यही थोड़ा एक अननोन सा नेम है. बाकी सब हमने थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं तो सुना ही है कि मैक्सवेल ने क्या ढूंढा था, फराडे ने क्या ढूंढा था, हर्ट्ज ने क्या ढूंढा था. तो थोड़ा तुक्का मारने के लिए हम ये कर सकते हैं, बट अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट है. जैसे कि फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, तो थोड़ा मुश्किल है उस तरीके से. आई थिंक दिस इज़ अ मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन. तुक्के से ही निकाल सकते हैं, अगर एग्जैक्टली याद हो तो इतना किसी को आई डोंट थिंक याद होना होएगा. क्वेश्चन नंबर 15 जीके साइंस का क्वेश्चन है ये. इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, एडिपोज टिश्यू. तो एडिपोज टिश्यू होता है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि स्टोर करता है फैट को इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है. जो एपिडर्मिस होता है ये स्किन से डील करता है, स्किन रिलेटेड होता है, स्किन का लेयर होता है. जो फैट पता है हम, जो लिवर होता है वो मेटाबोलाइज करता है फैट को. और एपिथीलियम क्या होता है, ऑर्गन्स के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक टिश्यू सा होता है, वो होता है एपिथीलियम. तो जो फैट को स्टोर करता है वो होता है एडिपोज टिश्यू. तो आई थिंक दिस इज़ अ मॉडरेट क्वेश्चन. आप बाकी ऑप्शंस को डिलीट करके करेक्ट आंसर में पहुंच सकते हैं इसमें बी में. तो मॉडरेट क्वेश्चन है. What does the airbag used for safety of car driver contain? तो ये भी जीके साइंस का क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज एग्जैक्टली मेन स्ट्रीम स्टडी मटेरियल में हम ये नहीं पढ़ते हैं और याद नहीं रहता इतने सारे केमिकल फार्मूला वगैरह. तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोडियम एजाइड. इसका फार्मूला क्या होता है, NaN3. ये होता है सोडियम एजाइड. सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, इट इज़ यूज इन बेकिंग सोडा. सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट होता है एक सोडियम नाइट्रेट एक प्रिजर्वेटिव होता है और सोडियम पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 10 रुपी नोट कंटेन्स द सिग्नेचर ऑफ. तो इसका करेक्ट आंसर है बी, गवर्नर ऑफ RBI. तो गवर्नर का RBI होता है जो कि सारे के सारे नोट्स को साइन करता है जो कि ₹2 एंड अबव होते हैं. जो ₹1 का होता है, यूजुअली इस पे क्वेश्चन आता है, ₹1 कौन साइन करता है, वो साइन करता है फाइनेंस सेक्रेटरी. एंड ये कौन इशू करता है, ये इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट RBI. जो इसके ऊपर के सारे नोट होते हैं 2 एंड अबव, वो इशू करते हैं RBI और RBI का गवर्नर होता है, वो इशू करता है. ये होएगा, ये इशू करेगा ₹1 नोट. ये कोई नहीं होता, ये कोई भी नोट साइन नहीं करता है, फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी नोट साइन नहीं करता है. तो दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन बिकॉज जब भी हम पढ़ते हैं हम इसको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तरह हमेशा याद रखते हैं कि ₹1 साइन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस सेक्रेटरी और ₹2 ऑनवर्ड्स सारे 10 हो, 11, 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो, वो साइन करता है गवर्नर RBI. ठीक है. अगला क्वेश्चन है गिल्ट एज्ड मार्केट इज. ये अगेन जीके का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. तो
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है, GSEC जिसे कहते हैं, एंड ये गवर्नमेंट बैक्ड होती है, इसलिए इनमें बहुत कम रिस्क होता है। तो जो भी मार्केट इससे डील करती है उसको हम क्या कहते हैं, गिल्ट एज्ड मार्केट। ठीक है, अगेन दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, आई थिंक मॉडरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू बिकम अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है ए, VS रामादेवी। मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं PU के पेपर्स में, तो फर्स्ट हमें हमेशा याद करने हैं, फर्स्ट वुमन और भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो फर्स्ट वुमन CEC है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 1990 में बनी थी, वो थी VS रामादेवी। एंड ये गवर्नर ऑफ कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश भी रह चुकी है। ठीक है, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट नेम। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? इसका करेक्ट आंसर है डी, अक्टूबर 1951 में स्टार्ट हुए थे और फरवरी 1952 तक ये चले थे। तो अगर आपको ईयर्स भी याद हो थोड़े भी, तो आप इस पर डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन थे उस टाइम के, एंड हमें सबको पता है कि ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे, तो इनका टाइमलाइन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द लास्ट अर्थ समिट हेल्ड? इसका करेक्ट आंसर है ए, 2012 में रियो डी जेनेरियो में हमारी अर्थ समिट हुई थी, जो कि रियो +20 अर्थ समिट थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन 2022, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू क्लियर एज ओवर। तो वो पूछ रहे हैं उनकी ऑपोजिशन कौन था, तो उनका ऑपोजिशन थी बी, यशवंत सिन्हा उनके ऑपोजिशन में थे, जिनको हरा के द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी थी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आई थिंक, क्योंकि 2 ही थे कंटेस्टेंट्स, तो उसमें से यशवंत सिन्हा था और द्रौपदी मुर्मू जी थे। क्वेश्चन नंबर 23, एसमीज डैश गॉट GI टैग। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग पे क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से लेटेस्ट न्यूज़ में हैं एंड कौन से फेमस हैं जिनको GI टैग मिल रहा है। तो क्योंकि एसमीज है तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो बिहू से, क्योंकि आप सोचोगे अच्छा बिहू है यहाँ पर, थोड़ा ऐसा कन्फ्यूजन हो सकती है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, गामोछा, और जिसको हम गमछा भी कहते हैं, गामोसा भी कहते हैं, इसको GI टैग में आता है। सो इट्स अ क्लॉथ दैट इज़ वोन ऑन द शोल्डर, तो इस पर ऐसे वाइट कलर का विद रेड रेड फैब्रिक हैंडलूम, तो उसको एक, जिसको हम गमछा कहते हैं वही होता है, इसको वहाँ पे गमोसा कहते हैं। क्वेश्चन 24, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल? जिसका करेक्ट आंसर है बी, मिस PT उषा। ये एक एथलीट हैं जिनको पायोली एक्सप्रेस भी कहते हैं, एंड शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ SSAI इज़, इसका करेक्ट आंसर है ए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, थिंक हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, एडिबल प्रोडक्ट्स, उन सब पे FSSAI की स्टैंपिंग होती है, तो इट्स अ वेरी कॉमन GK क्वेश्चन, फुल फॉर्म है, ईजी क्वेश्चन है। लिवेव इज इन विच कंट्री? क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यूक्रेन। थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो बिकॉज ये यूक्रेन रशिया वॉर के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में थी, एंड सारी की सारी जो उन्होंने कंट्रीज़ दी हैं वो इसी रीजन की हैं, थोड़ी इसलिए कन्फ्यूजन हो सकती है, बट आई थिंक दिस इज़ अ डूएबल मैनेजेबल क्वेश्चन। क्वेश्चन 27, चर्नोबिल इज़ फेमस फॉर। तो चर्नोबिल एक बहुत बहुत सीरियस न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट फेलियर इसका करेक्ट आंसर है। 1986 में हुआ था सोवियत यूनियन में। तो जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, जिस पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, तो वो चर्नोबिल के ऊपर था। दिस इज़ अ GK क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन, आई थिंक ये काफ़ी लोग पढ़ते हैं, अच्छा सा इसको मतलब इन्फॉर्मेशन है काफ़ी लोगों को, तो इट्स अ डूएबल क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए ये। क्वेश्चन 28, फर्स्ट वुमन टू विन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया। अगेन फर्स्ट वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग यूजुअली पूछते हैं PU के पेपर में कि फर्स्ट वुमन ये, फर्स्ट वुमन वो, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है सी, कर्णम मल्लेश्वरी। सो शी वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन विच ओलंपिक्स?
सिडनी ओलंपिक्स ऑफ 2000। बाकी नाम भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेरी कॉम पता ही है सबको, इनको बाद में मिला था। साइना नेहवाल को ब्रॉन्ज मिला था 2012 में, पीवी सिंधु को 2016 और 2020 में मिला था। सॉरी, ठीक है, जो फर्स्ट मिला था वो 2000 में मिला था कर्णम मल्लेश्वरी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। तो 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में, एंड द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ वर 11, एंड बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने बाद में होस्ट किया था, नॉट फर्स्ट एशियन गेम्स। फर्स्ट एशियन गेम्स इंडिया में होल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 30, फुल फॉर्म ऑफ इंटरपोल। अगेन अ फुल फॉर्म क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है बी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? लियोन, फ्रांस। एंड रेड कॉर्नर नोटिसेस, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस, ये सारा कौन करता है? इंटरपोल ही करती है। ये सारे जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, एंड दे आर मॉडरेट क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज। तो अब हमारा लैंग्वेज के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो कंटिन्यूस चेंज, यहाँ पर कंटिन्यूस वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फ्लक्स। बिकॉज फ्लक्स जो होता है वो कंटिन्यूस मूवमेंट होती है। जो डायनेमिज्म होता है वो एनर्जी और प्रोग्रेस तो होता है उसका मतलब, बट उसका मतलब कंटिन्यूस नहीं होता। मेटामॉर्फोसिस, अगेन स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम से जब चेंज होता है, जैसे कि कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है तो वो मेटामॉर्फोसिस होता है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन चेंज होता है बट कंटिन्यूस नहीं होता, वो सडन होता है। क्वेश्चन 32, पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री आर कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है सी, कंपैट्रियट्स। तो जो पैट्रियट्स होते हैं वो होते हैं पीपल हु लव देयर कंट्री। कॉमरेड्स कौन होते हैं? कंपेनियंस, एसोसिएट्स। और नेटिव कौन होते हैं? जो कहीं पर पैदा होता है उस जगह का वो नेटिव होता है। एंड जो लोग सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं वो होते हैं कंपैट्रियट। क्वेश्चन 33, रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच अ कंक्लूजन इज रीच्ड। तो मैंने जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया है सिलॉजिज्म, कि सिलॉजिज्म से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी। तो ये क्या होता है? ये होता है सिलॉजिज्म। टू स्टेटमेंट्स, 1, 2 एंड थर्ड एक कंक्लूजन। तो एक मेजर प्रेमाइस होता है, एक माइनर प्रेमाइस होता है, और उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे डिराइव करते हैं, वो होता है सिलॉजिज्म। इसका करेक्ट आंसर है ए, सिलॉजिज्म। एंड जो बाकी लॉजिज्म कोई वर्ड नहीं होता। एंड जो रिटोरिक होता है ये एक लिटरेरी, जो रिटोरिक होता है एक पर्सुएसिव स्पीकिंग का स्टाइल होता है। एंड रैप्सडी क्या होता है? एक लिटरेरी एक्सप्रेशन होता है। तो रीजनिंग का मेथड है वो है सिलॉजिज्म। क्वेश्चन 34, अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ओल्ड। इसका करेक्ट आंसर है बी, नॉनाजेनेरियन। तो ये होता है 90 to 99। आप थोड़ा 90 से भी एस्टिमेट लगा सकते हो। सेंटिनेरियन क्या होगा? 100 प्लस। ऑक्टोजेनेरियन क्या होगा? ऑक्टो से 80, 89। सेप्टुएजेनेरियन क्या होगा? 70 to 79। थोड़ा डिराइव करना आसान है, इजीली डूएबल क्वेश्चन। आंसर इज बी। क्वेश्चन 35, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ बीक्वेथ। तो बीक्वेथ का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी विल देते हैं या कुछ करते हैं जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टी या कुछ देते हैं, तो इसका मतलब होता है गिव। तो बीक्वेथ का मतलब होता है डी, गिव। जो डिस्क्लोज होता है उसका मतलब पता ही है, आई एम सॉरी, डिस्क्लोज का मतलब पता ही है, टू रिवील इन्फॉर्मेशन। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। सराउंड का मतलब होता है एनसर्कल करना। एंड बीक्वेथ का मतलब होता है गिव। क्वेश्चन 36, अ हेटर ऑफ मैरिज। तो यूजुअली जो वर्ड हेट है उसके आगे आप देखोगे एक वर्ड मिस हमेशा लगा होगा, ठीक है। मतलब कुछ भी गलत होगा, नेगेटिव कॉनोटेशन में होगा, उसके आगे मिस वर्ड यूजुअली लगा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है मीसोगैमिस्ट। एंड जो मैरिज वर्ड है वो यूजुअली गैमी से डील करता होगा, गैमी से। तो इससे आप डिराइव कर सकते हैं मीसोगैमिस्ट। इसके आप अगर रूट वर्ड पर जाएँ, एटिमोलॉजी पर जाएँ,
तो आप वर्ड्स के मीनिंग डिराइव कर सकते हैं। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम मैरिज। बीट्रॉथ का मतलब क्या होता है? एंगेज्ड। एंड एलोप का मतलब होता है टू रन अवे फॉर टू मैरी समवन, ठीक है। एंड एंगेज टू बी मैरिड, ये दोनों देखो कितने सिमिलर क्वेश्चन है। बीट्रॉथ अभी ऊपर बताया कि बीट्रॉथल का मतलब क्या होता है? एंगेजमेंट, शादी से पहले वाली एंगेजमेंट। इसके अलावा हम बाकी वर्ड्स भी डिस्कस कर लेते हैं। डांस का मतलब क्या होता है? पब्लिक मैरिज अनाउंसमेंट। ट्रूसो क्या होता है? ब्राइड्स क्लोथ्स एंड बिलोंगिंग्स। एंड मीसोगैमिस्ट हमने ऊपर ही पढ़ा, हेटर ऑफ मैरिज। क्वेश्चन 38, अ मैन हैविंग मोर वाइव्स एट अ टाइम। तो अब जब आप मोर वर्ड पढ़ोगे तो मोर में यूजुअली पॉली वर्ड आएगा, ठीक है। एंड पॉलीगैमी क्या होएगा? मैनी मैरिज, तो मैनी स्पाउसेस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। पॉलीएंड्री क्या होता है? पॉलीएंड्री का मतलब होता है वन वुमन मैनी हस्बैंड्स। पॉली का मतलब तो मैनी ही होएगा, एंड्री मतलब हस्बैंड्स। एंड पॉलीजिनी भी एक वर्ड होता है, तो पॉलीजिनी में क्या होएगा? वन मैन मैनी वाइव्स, ठीक है। क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है बी, पॉलीगैमी। क्वेश्चन 39, एंटी डिल्यूवियन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ओल्ड टाइम, बिफोर द बिब्लिकल फ्लड। तो एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन, जो हम एडी वगैरह पढ़ते हैं, एंटी डिल्यूवियम वो होता है ओल्ड टाइम। क्वेश्चन 40, ही डजेंट वर्क विद हैंड्स, कॉमा ही वर्क्स विद द मशीन। इसका करेक्ट आंसर है ए, विद। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 41, रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए अब हमारे। इफ़ ई इज इक्वल टू 5 एंड होटल इज इक्वल टू 12 देन लैम्प विल बी। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने सारे लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स के वो चेक करना है, इनके इक्वलेंट नंबर क्या है। तो अगर आप ABCD पूरा लिखेंगे तो आप उसके हिसाब से देखेंगे कि ई का नंबर क्या आता है? 5, फिफ्थ लेटर है ये। एंड ये एक ही लेटर है तो डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5। होटल का अगर आप सारा देखेंगे तो इसका टोटल जो सम आएगा वो आएगा 60। मैं अभी एग्जैक्टली करके नहीं बता रही, बट अगर आप करके देखेंगे तो ये एग्जैक्टली 60 आएगा। एंड इसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं 5, तो 60 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 12, ठीक है। अगर H का नंबर 8 है, O का नंबर 15 है, T का 20 है, E का 5 है, L का 12 है, ये सारे नंबर्स हैं। आप लिख के सबका देखेंगे तो 60 आएगा इन सबका एडिशन, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे। एंड जो नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 हैं, तो डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 12। सिमिलरली हम लैम्प का करेंगे तो लैम्प में L का होगा 12 प्लस A का होगा 1 प्लस M का होगा 13 प्लस B का होगा 2, टोटल सम आ रहा है 28। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 7। तो करेक्ट आंसर है इसका A, 7, ठीक है। सिमिलरली अब हम ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वन डे टिम लेफ्ट द होम एंड साइकिल्ड फॉर 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। मैं यहीं पे कर रही हूँ क्वेश्चन 42। सपोज ये टिम का घर है, इससे स्टार्ट किया उसने एंड साइकिल फॉर 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। 10 किलोमीटर हो गया ये। ही टर्न्ड राइट एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर। अब इसकी फेसिंग क्या है? ये फेसिंग है, इसका राइट बताना है। अपना राइट इधर को मत करना, ये गलत हो जाएगा। इसका इधर को फेसिंग राइट होएगा, इधर को। तो अब ये टर्न राइट हुआ एंड साइकिल्ड फॉर 5 किलोमीटर्स। देन ही अगेन टर्न राइट, साइकिल्ड फॉर 10 किलोमीटर्स अगेन। अब इसका फेस इधर को है, अब यहाँ से राइट इसका क्या बनेगा? इधर को। एंड यहाँ से इसने अगेन साइकिल किया 10 किलोमीटर्स के लिए। एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट टर्न किया एंड कैसे कितना चला? 10 किलोमीटर्स। तो हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और अभी ये यहाँ पर पहुँच चुका है एंड यहाँ से इसने वापस यहाँ जाना है। तो पूछ रहे हैं ये डिस्टेंस क्या है। अगर आप देखें ये 10 किलोमीटर हो गया, ये 5 किलोमीटर हो गया, तो 10 + 5 कितना बन जाएगा? 15 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, 15 किलोमीटर। 10 यहाँ पर एंड 5 यहाँ पर, 15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 43 भी सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
जैसी वॉक्स 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ चली 10 किलोमीटर्स. फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ, यहीं से वो वापस साउथ की तरफ आ गई. तो कितना हो गया, यहाँ तक 6 किलोमीटर साउथ को चला वो, ये वाला 4 किलोमीटर हो गया, राइट. 10 किलोमीटर पूरा था, 6 किलोमीटर वो वापस आ गया, तो ये 4 किलोमीटर हो गया. 10 माइनस 6 4. देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पता ही होगा सबको. अब वो ईस्ट की तरफ गया है, तो कितना गया है वो ईस्ट की तरफ, 3 किलोमीटर. यहाँ से यहाँ तक वो वापस आया 6 किलोमीटर, उसके बाद वो 3 किलोमीटर यहाँ को गया, तो ये हो गया 3 किलोमीटर. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ ही विद रेफरेंस टू ही स्टार्टिंग पॉइंट. ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये पूछ रहे हैं कितना डिस्टेंस है. तो सिंपल चीज़ है, हमारे पास ये एक ट्राइंगल आ गया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पूछ रहे हैं वो. ये 4 किलोमीटर है बिकॉज ये ऊपर वाला 6 था, ये टोटल 10 था. ये 3 किलोमीटर है, तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है. p² + b² = h². तो ये क्या बनेगा हमारा, 16² + 4² + 3², 16 + 9 = 25, √ = 5. तो हमारा आंसर है 5 किलोमीटर्स. ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है. अभी डायरेक्शन किधर को है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, राइट. तो करेक्ट आंसर है बी, 5 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट. ओके, इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 44, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी. तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, इफ़ इंडिया इज़ रिटन एज 914491, द दिल्ली विल बी रिटन एज. तो उन्होंने बोला इंडिया को इन्होंने लिखा है 914491. तो अगर आप ऐसे देखोगे तो क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. तो इसका मतलब कि एक एक का वो तो उन्होंने नहीं किया है कि आई का ये है, एन का 1 है, डी का 4 है, ये तो नहीं किया. इससे हमें ये तो मालूम पड़ ही रहा है. तो अगला लॉजिक क्या हो सकता है, अगला लॉजिक देखिए. अगर मैंने आपको पहले से क्या बताया है, जब भी आप ABCD कुछ भी पढ़ें तो आपने क्या करना है, सबको नंबर दे देना है. ए का 1, बी का 2, सी का 3, D E F G H I J K L M N O P Q T U V W X Y Z, ये आपने दे देना. और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता रहेगा आपका. तो अब देखिए आई का 9 आ रहा है यहाँ पे. एन का क्या आ रहा है, 14. डी का क्या आ रहा है, 4. आई का क्या आ रहा है, फिर से 9. ए का क्या आ रहा है, 1. तो आप देख सकते हैं ये क्या है, एग्जैक्टली नंबर्स ही लिख दिए हैं बस. तो दिल्ली का भी सिमिलर क्या करेंगे, डी का 4, सब 4 से स्टार्ट हो रहे हैं. ई का 5, एल का 12, एच का 8, आई का 9. तो क्या आंसर हो गया, 4 5 1 2 8 9. बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, बस नंबर्स लिखने हैं उनका, जो भी वो नंबर है बस वही लिखना है. A number consists of 3 digits whose sum is 10. The middle digit is equal to the sum of the other two and the number will be increased by 99 if its digits are reversed. तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके हैं. सबसे पहले सबसे इजी तरीका ये है कि आप ऑप्शंस के थ्रू जाए, वरना आप पूरा मैथ सॉल्व करने लगेंगे तो यहाँ पे सम स्टेप्स के मार्क्स तो नहीं है. सबसे पहले हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स हु सम इज 10. तो हम सबसे पहले सम चेक कर लेते हैं, कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा हो तो उसको एलिमिनेट कर देंगे. 1 4 5 10 बन रहा है, 2 + 5 + 3 10 बन रहा है, 3 + 7 10 बन रहा है, 3 + 5 + 2 10 बन रहा है. तो ये तो हमारी स्टेटमेंट सब पे ट्रू बैठ ही रही है. मिडिल डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू. तो 1 + 5 मिडिल डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू. 1 + 5 4 नहीं होता, ये गलत हो गया. 3 + 2 5 होता है, ये हो सकता है. 3 + 0 7 नहीं होता. 2 + 3 5 हो सकता है. तो इन दोनों में से हमारा बचा है 2 ऑप्शंस तो कट गया, ये दोनों नंबर सिमिलर है. अगला स्टेटमेंट क्या है, नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय 99 इफ इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड. तो अगर इसको मैं रिवर्स करूँ तो बन जाएगा ये 3 5 2, और अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो बन जाएगा 2 5 3. ठीक है. एंड उन्होंने बोला है कि नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय 99 तो अभी बाद में कैलकुलेट करना. अब ये देखो कि ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये नंबर तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा.
ये तो डिक्रीज हो रहा है, एंड ऑब्वियसली डिफरेंस तो 99 का ही आ रहा है, डिफरेंस तो 99 का ही आ रहा है, बट ये नंबर डिक्रीज हो रहा है, ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स पे सही बैठ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है, 253। अब अगर आपने इसको सॉल्व भी करना है तो इसको सॉल्व करने का भी एक आसान सा तरीका है, मैं आपको वो सॉल्व करके भी दिखाया था कि कोई और अगर ऐसा सम आए तो आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले सबसे स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास 3 डिजिट नंबर है एंड सपोज नंबर है ए बी सी, इनके सम क्या है 10, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। अब मिडिल डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, अब अगर हमारे को इस इक्वेशन को इसमें बैठाना है तो हम कैसे बैठाएंगे, a प्लस सी इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये हमारा क्या है b, तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 2c इक्वल टू 10। एंड अब क्या बनेगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 10, तो a प्लस सी इक्वल टू 5। ठीक है, अब a प्लस सी इक्वल टू 5, इसका मतलब ये क्या था हमारा b, तो b इज इक्वल टू 5। अब b इज इक्वल टू 5 हमारे पास पता है हमें, अब हमें बाकी इसमें सॉल्व करना है। हम बाकी कैसे करेंगे, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया a 5c। अब अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा c 5a, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है 99 का। तो ऑप्शन से अगर हम निकालेंगे तो 99 का डिफरेंस कब आ रहा है, जब हम सिर्फ ये नंबर पे आएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन, ऑप्शन से आराम से निकल रहा है, इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो, ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 18 मोर दैन द ओरिजिनल नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8, देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो सम ऑफ द डिजिट्स इज 8, तो ये तो सब में ही ट्रू है, इसको तो हम ये नहीं कर सकते। इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 18 मोर दैन द ओरिजिनल नंबर, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, नंबर क्या है हमारा 10k प्लस वाई, सपोज ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, और दिया क्या हुआ है हमें x प्लस वाई, जो सम ऑफ नंबर्स है वो है 8। अब अगर हम इंटरचेंज कर देंगे, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, और अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो इंटरचेंज नंबर क्या बनेगा 10y प्लस एक्स। एंड इन्होंने क्या बोला है कि 10y प्लस एक्स जो है वो है 10x प्लस वाई का प्लस 18, राइट। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें सिंपल मेथड से तो क्या बनेगा 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 18, 9y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल तरीका है, इसको करेंगे y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, सिंपल तरीके से y इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा ना y इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5, और x हमारे पास आ जाएगा 3, तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 35। 10x प्लस वाई डाल के ओरिजिनल नंबर 35 आ गया, रिवर्स नंबर 53 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है बी 35। ठीक है, अगेन दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, हमने अभी सॉल्व किया, उसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन है रेशो 5:4 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इज इक्वल टू, वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपली कुछ नहीं करना है, 5/4 का परसेंटेज निकालना है। राइट, 125%, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 48, P, Q and R are 3 typists who working simultaneously can type 216 pages in 4 hours. In 1 hour, R can type as many pages more than Q as Q can type more than P. During the period of 5 years, R can type as many pages as P can during 7 hours. How many pages does each of them type per hour? इसको हम लिखेंगे सबसे पहले, तो P प्लस Q प्लस R 216 पेजेस टाइप कर सकते हैं 4 आवर्स में, तो 1 आवर में ये लोग कितना कर सकते हैं 54 पेजेस, तो P प्लस Q प्लस R कितना बना 54,
अगला क्या लिखा है उन्होंने, आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर दैन क्यू, क्यू से इतना ज़्यादा जितना कि क्यू टाइप कर सकता है पी से ज़्यादा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर, ये p यहाँ चला जाएगा, q यहाँ चला जाएगा, 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर। नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने कि r कैन टाइप 5 आवर्स में उतना जितना p कैन टाइप ड्यूरिंग 7 आवर्स, तो 5r इज इक्वल टू 7p। ठीक है, अब r क्या हो जाएगा, 7/5p। अब अगर हम इसको यहाँ पर डालेंगे तो 2q इज इक्वल टू p प्लस 7/5p। और अब हम इस स्टेटमेंट को ऐसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो q इज इक्वल टू p प्लस 7/5p, ये बन जाएगा 2q इज इक्वल टू 12p/5, 12p इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 10/12q। अब हम अगर इसको यहाँ पर डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3q आ जाएगा इज इक्वल टू 54। तो q हमारे पास क्या आ गया, 18। और अगर हम बाकी p प्लस आर में डालेंगे तो p प्लस आर क्या बन जाएगा, 36। एंड यहाँ से हमने क्या डिराइव किया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, p प्लस 7p/5 इज इक्वल टू 36। तो p क्या आ गया हमारे पास, 15। और r क्या बन जाएगा, 36 माइनस 15 इज इक्वल टू 21। तो हमारे पास r आ गया 21, p हमारे पास आ गया 15 और हमारे पास q क्या आ गया, 18। इसी से हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हमारा आंसर बना यहाँ पर, 15, 18, 21, ऑप्शन सी, राइट। इजी स्टेटमेंट, इजी क्वेश्चन। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। A can complete a piece of work in the same amount of time as B and C together take to complete the same work. A and B together can complete that work in 10 days and C alone can complete it in 50 days. How many days will it take for B to complete the work alone? अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि A, B एंड C को कितना कितना टाइम लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि C को लग रहा है 50 डेज़, तो C का क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू 1/50। एंड A और B को टुगेदर कितना लग रहा है, 10, तो 1/10। तो इनका वर्क डन कितना आ गया, 1/50 और 1/10। एंड A प्लस B प्लस C कितना है, अगर मैं A प्लस B इज इक्वल टू 1/10 बोल रही हूँ तो इन्होंने आगे क्या बोला है यहाँ पर, A उतना कर सकता है जितना कि B और C को टुगेदर लग रहा है सेम काम करने में। तो इन्होंने क्या बोला, A इज इक्वल टू B प्लस C। A को उतना लग रहा है जितना B और C को टुगेदर लग रहा है। अब अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अब क्या होगा, A इज इक्वल टू B प्लस 1/50। तो A माइनस B इज इक्वल टू 1/50 हो गया और A प्लस B इज इक्वल टू 1/10 हो गया। अब हम अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आया, अगर मैं इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 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 2b इज इक्वल टू माइनस 1/50 माइनस 1/10, ये हो जाएगा 50। ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 4/50। तो माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 4/50, माइनस माइनस कट गया, b इज इक्वल टू 4/50 और नीचे 1/2, ये कट गया 2, ये कट गया 25। तो b कितना आया हमारा, 1/25। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो b को लग रहे हैं 25 डेज। इन्होंने क्या पूछा है, b को कितना लग रहा है, 25 डेज, ऑप्शन सी। हमने यहाँ पे माइनस, क्योंकि अगर हम a को कैलकुलेट करते और फिर b निकालते तो हमारे पास लंबा हो जाता है, इसलिए हमने b को ही देखा क्योंकि हमने उनसे पूछा है b का कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, 3 persons आर वॉकिंग फ्रॉम अ प्लेस A to B, their speeds are in the ratio of 4:3:5. The time ratio to reach B by these persons will be. तो सबसे पहले एक तो इसका ऑप्शंस के थ्रू डिराइव करने की कोशिश करते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि एक है स्पीड्स का रेशो और उन्होंने पूछा है हमसे टाइम का रेशो।
तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होएगा, क्योंकि स्पीड का जो वो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम है। तो जिसकी स्पीड सबसे कम है 3, उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है उनको बाकी दोनों से, राइट। तो यही होना चाहिए हमारा आंसर। जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है उसको सबसे कम टाइम लग रहा है, यहाँ पर उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पर चलो ठीक है हो सकता है, यहाँ पर ये भी गलत है। तो ये देख सकते हैं, हम कर सकते हैं कि आंसर इसका करेक्ट डी है। बट अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे को पता है इनके स्पीड्स का रेशो क्या है। स्पीड का रेशो है 4:3:5 एंड टाइम का रेशो क्या है 1/4, 1/3, 1/5। एलसीएम लेंगे 60, तो जो ऊपर का वो न्यूमेरिकल नंबर्स आएंगे, न्यूमरेटर्स आएंगे, वो क्या आएंगे 15:20:12। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम लेना है 60 आएगा, 60 वैल्यू आने के बाद इनके न्यूमरेटर्स फिल करेंगे तो हमारे पास रेशो ही आ जाएगा। बट इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा यहाँ से निकालो, आपको निकल जाएगा आंसर ऑप्शन से, ऑप्शन डी। अगली स्टेटमेंट है लीला इज़ मोर स्टूडियस दैन किम। लीला को किम से ऊपर रखना है। किम इज़ नॉट एज स्टूडियस एज पूजा, तो मतलब कि पूजा ज़्यादा है किम से। काजल इज़ नॉट एज स्टूडियस एज किम और पूजा, तो मतलब कि काजल जो है वो किम और पूजा दोनों से नीचे है, पूजा और किम दोनों से ऊपर है। हु इज़ इन द लास्ट डिग्री ऑफ बीइंग स्टूडियस। तो ये तो हमारे पास हो गया क्लियर कि लीला ऊपर है, फिर पूजा ऊपर है, फिर किम है एंड सबसे नीचे है काजल, क्योंकि काजल तो किम से भी नीचे है। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, काजल। क्वेश्चन नंबर 52, द टाइम बाय अ वॉच इज़ 1:30 if the hour points towards west, in which direction will the minute hand point? इसके सबसे पहले आप घड़ी बनाओ, उसमें आपको पता है ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। उन्होंने बोला है कि 1:30 बज रहे हैं, तो मतलब कि 1 से थोड़ा आगे होएगा एंड 30 से भी थोड़ा सा आगे होगा। अब उन्होंने बोला है कि अगर आर हैंड जो है, ये वाली आर हैंड होएगी, ये अगर वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा ईस्ट, ये क्या हो जाएगा साउथ। तो जो इसकी मिनट हैंड है ये वाली, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, नॉर्थ ईस्ट। अगला क्वेश्चन, दिस ऑल दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है द मदर ऑफ 5 स्टूडेंट्स ABCDE हैव डिफरेंट प्रोफेशंस, दैट इज टीचिंग, म्यूजिक, मेडिसिन, लॉ एंड आर्किटेक्चर। एज मदर इज़ नॉट एन आर्किटेक्ट बट ईज मदर इज़ अ सिंगर, तो ई की तो हमारी हो गई सिंगर। डीज मदर टीचर्स, बी की होगी टीचर। सीज मदर प्रैक्टिसेस मेडिसिन, तो ये होगी मेडिसिन। डीज मदर इज़ नॉट अ लॉयर, तो हमारे पास क्या बचा है, डी और ए। अब ए की मदर आर्किटेक्ट नहीं है तो डी ही बचा है, तो डी आर्किटेक्ट होगा। एंड ए की आर्किटेक्ट नहीं है तो वो क्या बचेगी, वो लॉयर होगी, बिकॉज डी लॉयर नहीं है। तो हमारे पास लॉयर कौन बचा, ए। इसका करेक्ट आंसर है ए, लॉयर। ए की मदर है लॉयर। अगला स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 8, देन द नंबर्स दिस विल गिव अ वर्ड। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें एक सेम नंबर, सबसे पहले तो सीरीज देख लो, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 8, तो ई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। मतलब इन्होंने सब आगे बढ़ा दिए। सेकेंडली आप ऑप्शन से देख लो, आपको पूरा करने बैठोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड लेटर क्या है, 5, 5 क्या है, ए। यहाँ पर सेकेंड 5 नहीं है, ए नहीं है, गलत। ये यहाँ पर है, हो सकता है, यहाँ पर नहीं है, आर आ गया, गलत। यहाँ पर आर आ गया, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर ये बच गया। दोबारा आपको चेक करना है तो यहाँ से चेक करो, जो इसका 1 2 3 4 5th लेटर है वो है 9, वो होना चाहिए ई। 1 2 3 4 5 यहाँ पर है ई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये लॉयर्स ही है। अब बाकी अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व करके सारा देख लो। एल होगा 16, ऐसे आगे चलते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ़ एवरी 2 आउट ऑफ 3 रेडीमेड शर्ट्स नीड ऑल्टरेशंस इन द स्लीव, 2/3 को स्लीव्स में चाहिए। Every 3 out of 4 needs alterations in collars. Every 4 out of 5 needed in body. How many alterations will be required for 60 shirts?
तो हम सबको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 60. क्या आ गया 40. प्लस 3/4 इंटू 60 कितना आ गया 45. और 4/5 इंटू 60 कितना आ गया 48. इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 813. और यहाँ पर टोटल हमारा बन जाएगा 133. इसका करेक्ट आंसर है सी 133. इन सबको ऐड कर देंगे 40 + 45 + 48 इक्वल टू 133. तो करेक्ट आंसर है 133. ओके. क्वेश्चन नंबर 56. अभी भी रीजनिंग के क्वेश्चन ही चल रहे हैं. इन अ क्लास 20% of the members own 2 cars each. 40% of the remaining members own 3 cars each, and the remaining members own only 1 car each. Which of the following statements is definitely true from the given statement? Only 20% of the total members own 3 cars each. 3 cars का भी हमने यहाँ पे लिखा. 48% of the total members own only 1 car each. इसको सॉल्व भी करके देखते हैं. तो सबसे पहले अज्यूम करो कि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 100. तो हमारे पास 2 कार्स वाले कौन से हैं 20%, मतलब कि 20 लोग. 40% ऑफ द रिमेनिंग, इसमें रिमेनिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है कि इसका रिमेनिंग क्या होएगा 20 यहाँ पर हो गए तो 80 का 40%. तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 32. तो 32 लोगों के पास कितनी है 3 कार्स ईच. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. 3 कार्स. रिमेनिंग मेंबर्स ओन ओनली 1 कार ईच. अब रिमेनिंग कितना हुआ 80 - 32 48. 48 पीपल ओन ओनली 1 कार ईच. तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बी 48%, बिकॉज रिमेनिंग पूछा इन्होंने. रिमेनिंग मेंबर्स ओन ओनली 1 कार ईच. तो हमारे पास रिमेनिंग कितने बच गए 80 - 32 48. 48 के पास 1 कार है. इसका करेक्ट आंसर है बी 48% ओन ओनली 1 कार. क्वेश्चन नंबर 57. A total of 3 to 4 coins of 20 paisa and 25 paisa make a sum of rupees 71. The number of 25 पैसा कॉइन इज. इसको सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है कि आप अज्यूम करो कि नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स है आपके पास x. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं आपके पास 3 to 4. तो x प्लस नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स आपके पास मिल गए होंगे. मतलब x हो गए 25 पैसा कॉइन्स और 20 पैसा कॉइन्स आपके पास मिलाकर कितने हो गए 3 to 4 नंबर हो गए. अब अगर हमारे पास वैल्यू वाइज देखें तो हमारे पास वैल्यू वाइज कितना बनना चाहिए 71, राइट. एंड अगर हम इसको ₹71 को पैसे में ही कन्वर्ट करें तो हमारे पास कितना बन जाएगा 7100. तो हम क्या करेंगे अगर हमारे पास 25 पैसे के x नंबर ऑफ कॉइन्स हैं प्लस 20 पैसे के यहाँ से अगर हम निकालें 3 to 4 माइनस x नंबर ऑफ कॉइन्स है, इनका सम हमारे पास कितना बन रहा है 7100. तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 25x प्लस 6480. इसको मल्टीप्लाई यहाँ से करके माइनस 20x इज इक्वल टू 7100. 5x इज इक्वल टू 620. x इज इक्वल टू 124. तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितने आ रहे हैं बी 124 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अगला क्वेश्चन 58. अ मैन वेयर्स सॉक्स ऑफ 2 कलर्स ब्लैक एंड ब्राउन. He has altogether 20 black socks and 20 pink socks in the drawer. Supposing he has to take out the socks in the dark, how many must he take out to be sure that he has a matching pair? Easy question, very easy question. उसने फर्स्ट सॉक्स निकाली, वो कलर निकली ब्लैक. उसने सेकेंड सॉक्स निकाली, उसने निकाली वो पिंक. तो अगर वो फर्स्ट निकालेगा तो ऑब्वियसली इसका मैचिंग पेयर नहीं बनेगा. सेकेंड निकालेगा तो मैचिंग पेयर बन सकता है. अगर वो ब्लैक निकल गई तो बन गया, अगर पिंक निकल गई तो नहीं बनेगा. बट उसको श्योर होना है, तो श्योर होने के लिए वो थर्ड सॉक्स निकालेगा. एंड वो ब्लैक भी निकल सकती है, वो पिंक भी निकल सकती है. बट एज सुन एज वो कोई भी निकलेगी उसका एक पेयर तो कंप्लीट हो गया ना. तो इसका करेक्ट आंसर है A3. थर्ड सॉक्स निकालते ही चाहे वो पिंक निकले चाहे वो ब्लैक निकले, उसका एक सॉक्स एक वो कंप्लीट हो जाएगा. ऑल दिस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है. यहाँ पे ब्राउन दिया है, यहाँ पे वो पिंक बन गया, बट ठीक है, क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर. क्वेश्चन 59. Abba cut a cake into 2 halves and cut 1 half into smaller pieces of equal size.
Each of the small pieces is 20 grams in weight. If she has 7 pieces of the cake in all with her, how heavy was the original cake? इसको सिंपल तरीका है, इसने बोला है केक है हमारे पास, अगर हम पिक्टोग्राफिकली ड्रॉ करें तो उसने उसको एक हाफ में काटा, ये हो गया 1/2 एंड ये होगा सेकेंड हाफ, एंड जो सेकेंड हाफ है उसने इसको इक्वल पीसेस में काटा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7th। जो स्मॉल पीसेस हैं वो हैं 20 ग्राम्स वेट, तो मतलब कि 6 पीसेस हो गए उसके 20 ग्राम्स वेट के, तो हो गया 120 ग्राम। तो ये पूरा का पूरा कितना बना 120 ग्राम, एंड ये वाला पीस भी इक्वली फिर होगा 120 ग्राम का, तो 120 ग्राम इंटू 2 इज इक्वल टू 240 ग्राम्स। इसका करेक्ट आंसर है सी, 240 ग्राम्स। Question number 60. At the end of a business conference, the 10 people present all shake hands with each other once. How many handshakes will be there altogether? तो अगेन दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, सिंपल ही है, फॉर्मूला याद करो, n(n-1/2), ये आपका सिंपल फॉर्मूला है। n क्या है, नंबर ऑफ पीपल, तो 10 इंटू 10-1 9/2, 9 5 45, करेक्ट आंसर इज 45, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ तक हमारी रीजनिंग कंप्लीट। अब आगे हमारा लॉ शुरू हो गया है, आईपीसी का क्वेश्चन है। B happened to be a member of unlawful assembly. A factional fight ensued during which B was injured and retired to the side. Later on, a man was killed. Now, B is guilty of murder, being member of unlawful assembly. B is not guilty of murder as he ceased to be a member of unlawful assembly at the time when the murder was committed. B is not guilty of murder but lesser offense. ये तो गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर। ये क्यों है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर हो चुका था, उसके पास अब कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था, एंड जब वो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट ही नहीं है तो उसका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है, एंड ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द मर्डर। इसका करेक्ट आंसर है बी, बी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, क्योंकि वो अब अनलॉफुल असेंबली का पार्ट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ अबेटमेंट। तो अबेटमेंट इनका फेवरेट टॉपिक है, काफ़ी पूछते हैं ये लोग। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, अगर ए बी को अबेट करता है कि वो कोई ऑफेंस कमिट करे सी के अगेंस्ट, मतलब वो उसको भड़काता है, एंड वो भड़का किस किस तरीके से सकता है, वो उसको इंस्टिगेट कर सकता है, उसको भड़का सकता है, वो कॉन्स्पिरेसी कर सकता है कि चलो मिलकर तुम्हें मैं ये देता हूँ, तुम इसका मिलकर सी का मर्डर करते हैं, वो कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, वो इंटेंशनली एड कर सकता है, वो उसको स्वॉर्ड दे सकता है, वो उसको नाइफ दे सकता है, उसको गन प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो सी का मर्डर करे। बट एंटाइसमेंट का मतलब क्या होता है कि वो उसको ल्योर कर रहा है, वो उसको कोई बेनिफिट दे रहा है कि ये देखो अगर तुम ये करोगे तो फिर मैं तुम्हें ये दूंगा, वो उसको एक बहुत अट्रैक्टिव सी या टेम्पटिंग सी वो दे रहा है, इंटरेस्ट या डिज़ायर दे रहा है। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ अबेटमेंट होते हैं, बट डी ही है जो इंग्रेडिएंट नहीं होता, दिस इज़ नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ अबेटमेंट। क्वेश्चन 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेडिशन। सेडिशन का ऑफेंस क्या होता है, सेडिशन का ऑफेंस होता है जिसमें कि वो कुछ भी डिससेटिस्फैक्शन करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट को थ्रो करने के लिए, ओवर रूल करने के लिए कुछ भी ऐसा एक्ट करते हैं जिससे कि गवर्नमेंट के प्रति लोगों के बीच में डिसअफेक्शन आए, उसको कहते हैं सेडिशन। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होता, मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होता, वर्ड स्पोकन मस्ट कॉज पब्लिक डिसऑर्डर बाय एक्ट्स ऑफ वायलेंस नहीं होता। जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो ये है, एक्साइटिंग डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ये होता है करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शंस हैं, बेसिकली उन्होंने पूछा है कि एफरे की डेफिनेशन क्या होती है। तो व्हेन 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. अगले वाले में 5 or more people हो गया, in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. अगले में फिर से 5 है बट उन्होंने प्राइवेट प्लेस कर दिया, और अगले में 2 है और उन्होंने प्राइवेट प्लेस ही रखा है। तो बाकी सारे फैक्टर्स तो सेम है, हमें पब्लिक और प्राइवेट और नंबर ऑफ पीपल देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। एफरे क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 2 or more persons फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, तो वो बन जाता है ऑफेंस ऑफ एफरे, ठीक है।
इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा पब्लिक प्लेस होनी चाहिए, डिस्टर्ब पब्लिक पीस करनी है। अगला है द एक्ट ऑफ गॉड कॉजेज इंजरी टू नो वन, मीन्स लैटिन मैक्सिम पे है ये, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन ए, एक्टस डी नेमिनी फेसिट इंजूरियम। इसका मतलब क्या बनता है, एक्ट ऑफ गॉड कॉजेज इंजरी टू नन। एड होमिनियम क्या होता है, इट रिलेट्स टू ह्यूमन्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट अफेक्टिंग अ पर्सन। अट्रेस मेजर्स वैलिड क्वम पीरियड, इसका मतलब क्या होता है कि एक इंटरप्रिटेटिव टूल है, इंटरप्रिटेशन का टूल है। इसका मतलब है कि जब भी कोई ट्रीटी है, कोई एक्ट है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको हम जो भी कोर्ट्स होंगी वो ज़्यादातर मानेंगी कि वैलिड है, वॉइड के बजाय वो ये मानेंगी, उस तरफ से इंटरप्रिटेशन करेंगी कि वो वॉइड ना हो, वैलिड बने। एंड जो लास्ट वाला है फ्रॉ ए जूस नोन क्याम कोहैबिटेंट, इसका मतलब क्या है, फ्रॉड एंड जस्टिस नेवर ड्वेल्व टुगेदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 66, विच इज़ इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, अ हिंदू मेल शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ अनलेस शी, तो वो बोल रहे हैं कि हिंदू मेल अडॉप्ट नहीं कर सकता अपने वाइफ के कंसेंट के बिना, एक्सेप्ट मतलब कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं सेक्शन 7 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। वो क्या है, अगर वाइफ ने वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया है, अगर वो दुनिया के वर्ल्ड अफेयर्स से छोड़ चुकी है, तो वो मेल अडॉप्ट कर सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ दी वाइफ, ये ठीक है। अगर वो इंसॉल्वेंट बन चुकी है, ये गलत है। अगर वाइफ उसकी अब हिंदू नहीं है तो वो अडॉप्ट कर सकता है विदाउट कंसेंट, ये ठीक है। शी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ये भी ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इंसॉल्वेंसी कोई एक्सेप्शन नहीं है। रिनाउंसमेंट ऑफ द वर्ल्ड, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, सीजिंग टू बी अ हिंदू और अनसाउंड माइंड, ये तीनों एक्सेप्शंस हैं। क्वेश्चन 67, एज पर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1957 मेंटेनेंस इंक्लूड्स, तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली आंसर्स ऑल ऑफ द अबव होते हैं, बट यहाँ पर आपने बहुत ध्यान से देखना है कि एंटरटेनमेंट वर्ड है, तो एंटरटेनमेंट तो मेंटेनेंस में नहीं होना चाहिए इंक्लूड, तो ये गलत है। ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं इंक्लूडेड, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, तो मैंने पूछा है कौन सी मुस्लिम लॉ में मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं है। सही है बिकॉज इट्स अ वैलिड मैरिज, फासिद है बिकॉज इट्स एन इरेगुलर मैरिज, एंड बाटिल है बिकॉज इट्स अ वॉइड मैरिज, बट तभी इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन मुस्लिम लॉ। क्वेश्चन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉट, तो डेफमेशन टॉट भी होते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस भी होते हैं, नेग्लिजेंस भी टॉट भी होते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस भी होते हैं, और न्यूसेंस भी दोनों होते हैं। बट कल्पेबल होमिसाइड विच इज़ अ फॉर्म ऑफ मर्डर, मतलब कि मर्डर का ही एक वेरिएंट है, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन, वो एक टॉट नहीं है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस ही होता है। क्वेश्चन 70, a loud bass beat that can be heard through an apartment wall from another apartment at midnight can be classified as, इसलिए न्यूसेंस है ये, दूसरे इंसान को न्यूसेंस हो रही है उससे, यूज़ ऑफ लैंड, इन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इन सबको इफेक्ट कर रही है। ट्रेसपास में क्या होता है, डायरेक्ट फिजिकल इंट्रूजन चाहिए होता है, एंड कन्वर्जन क्या होता है, रॉन्गफुली डीलिंग विद द प्रॉपर्टी, एंड इंटरफेरेंस विद कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस तो ऑब्वियसली अलग ही चीज़ है, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूसेंस। व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म एक्शनेबल पर से, तो एक्शनेबल पर से का मतलब होता है जो कि ऐसे ही एक्शनेबल होता है, इसके अगेंस्ट वैसे ही केस और सूट फाइल कर सकते हैं। तो एक्शनेबल ओनली इन सिविल कोर्ट्स नहीं होता, टॉट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं होता, एक्शनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज येस, एक्शनेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द इंजर्ड पार्टी ये तो हमेशा ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जिसमें आपको डैमेज नहीं प्रूव करना होता, ये वैसे ही एक्शनेबल ऑफेंस होता है, उसको कहते हैं एक्शनेबल पर से, जैसे कि ट्रेसपास, जैसे कि डेफमेशन। अब डेफमेशन क्या होता है, डेफमेशन होता है जो हार्म करता है आपकी रेपुटेशन को, बट अगर किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया है तो वो तब भी एक वैलिड एक्शनेबल पर से ही है, बिकॉज चाहे कुछ डैमेज हो ना हो वो फिर भी एक्शनेबल होगा, उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72,
द पिजन होल थियोरी फॉर द लॉ ऑफ टॉट वॉज गिवन बाय। तो जब हम टॉट्स पढ़ते हैं तो हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक पिजन होल थियोरी होता है जो कि दी थी सैलमंड ने। इसका करेक्ट आंसर है सी, सैलमंड। तो सैलमंड ने क्या कहा है कि उसने कहा है कि देयर इज़ नो जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉट लायबिलिटी। अगर कोई भी रॉन्ग ऐसे एक पिजन होल में फिट होता है, अगर वो पर्टिकुलर उन बॉक्सेस में फिट होता है और रिकग्नाइज्ड कैटेगरी के अंदर आता है, तो ही वो एक टॉट बनता है। जैसे कि नेग्लिजेंस एक नाम है, डेफमेशन, ट्रेसपास। तो ऐसे पर्टिकुलर अगर नाम है उसमें फिट होता है तो ही वो एक टॉट होएगा। इसके ऑपोजिट विनफील्ड ने क्या कहा है? विनफील्ड ने कहा है कि कोई भी अनजस्टिफाइबल हार्म होगा जिसकी कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होएगी तो वो एक टॉट बन जाएगा। उसके लिए कोई स्पेसिफिक नाम हो या ना हो, वो फिर भी एक टॉट होएगा। लॉर्ड मैकॉले ने क्या कहा है? लॉर्ड मैकॉले इज एसोसिएटेड विद आईपीसी की ड्राफ्टिंग, तो वो टॉट से रिलेटेड तो है ही नहीं। एंड ऑस्टिन को हम पढ़ते हैं एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। तो आंसर तो इन दोनों में से ही होना था कोई। अगर आपने पढ़ा है टॉट्स तो हम स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ते हैं कि दो थ्योरीज होती हैं, एक सैलमंड ने दी है पिजन होल और दूसरी विनफील्ड की। क्वेश्चन नंबर 73, द मेन डिफरेंस बिटवीन लिबेल एंड स्लैंडर इज। तो अगर आपको याद करना है, सिंपल है। लिबल जो होता है इट इज़ लाइक लेबल, एंड लेबल क्या होता है? प्रिंट में। एंड स्लैंडर इज़ लाइक स्पोकन वर्ड्स, माउथ। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, लिबल कंसर्न दोज थिंग्स इन प्रिंट एंड स्लैंडर दोज थिंग्स विच आर स्पोकन। इसमें एक और क्वेश्चन का टाइप होता है, वो होता है लिबल इज टू आइज एंड स्लैंडर इज टू ईयर्स। बिकॉज ये होता है सुनने वाला और ये होता है देखने वाला, जो हम प्रिंट में पढ़ रहे हैं। तो लिबल लिखा हुआ होता है कुछ भी कहीं पे भी, एंड स्लैंडर होता है जो सुना हुआ है, जो बोला गया है। एंड ये दोनों फॉर्म्स ऑफ डेफमेशन है। मतलब कि अगर कोई भी बंदा कुछ ऐसा बोलता है जो कि दूसरे बंदे की रेपुटेशन को कम करता है, तो वो होता है डेफमेशन। एंड डेफमेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लिबल और एक होता है स्लैंडर। ऑल्सो स्लैंडर क्या हो गया? क्योंकि वो बोला गया है तो ये हो गया टेम्पररी, एंड लिबल क्योंकि लिखा गया तो ये हो गया परमानेंट। एंड ऑल्सो लिबल जैसे कि अगर वो परमानेंट है, लिखा हुआ है, तो वो एक्शनेबल पर से हो जाएगा। चाहे कोई डैमेज, कोई हार्म हुआ हो ना हुआ हो, एक बार टाइप कर दिया है, सपोज न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दिया कुछ भी डेफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट पी, तो वो एक्शनेबल पर से होएगा इंग्लिश लॉ में। एंड स्लैंडर क्योंकि टेम्पररी है तो इसमें प्रूफ चाहिए होता है डैमेजेस का। ठीक है। क्वेश्चन 74, कंसेंसस एड इडम मीन्स। तो कंसेंसस एड इडम एक कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, जिसमें क्या कहते हैं कि दोनों जो पार्टीज़ हैं ए और बी, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो दोनों अग्री करनी चाहिए सेम चीज़ के बारे में इन द सेम सेंस। इसका करेक्ट आंसर है सी, अग्रीमेंट अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसको और क्या कह सकते हैं? मीटिंग ऑफ माइंड्स। जैसे कि अगर ए ने बोला कि आई वॉन्ट टू सेल माई हॉर्स टू यू, एंड ए के पास अगर जो हॉर्स है वो वाइट हॉर्स है, एंड ए को पता है मैं वाइट हॉर्स की ही बात कर रहा हूँ, एंड बी को भी पता है वो वाइट हॉर्स की ही बात कर रहा है, तो तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्योंकि दोनों के दोनों का जो कंसेंट है वो कंसेंशुअल है। दोनों ने सेम चीज़ के बारे में, इन द सेम थिंग इन द सेम सेंस के बारे में अग्री किया है। क्वेश्चन नंबर 75, एक्स ओज ₹15,000 to y and y accepts ₹12,000 in full and final settlement of the outstanding due. This is called, इसका करेक्ट आंसर है बी, रेमिशन। रेमिशन का मतलब ये होता है कि सपोज ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 15,000 का, जैसा यहाँ पे लिखा है, बट बी कह देता है कि मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर रहा हूँ, इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे 12K दे दो, एंड इसके बाद नथिंग विल बी ड्यू, कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारी जो अग्रीमेंट है वो फुल फाइनली कंप्लीट हो जाएगी। एंड वो उससे लेसर अमाउंट में अग्री कर रहा है, वो उसमें ऑल्टरेशन नहीं किया, कोई बाकी अग्रीमेंट्स को वो चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो उसकी अमाउंट को कम करके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मान रहा है। तो वो बैलेंस अमाउंट जो 3,000 की है उसको क्या कर दिया उसने? वेव ऑफ कर दिया। तो ये होता है रेमिशन।
कैंसलेशन नहीं है क्योंकि अग्रीमेंट तो अभी भी वैलिड है, पूरी तरीके से कैंसिल थोड़ी ना कर दिया है। ऑल्टरेशन भी नहीं है क्योंकि ऑल्टरेशन में बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी चेंज हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, रेमिशन। Question 76. If the finder of goods does not return the goods to true owner, he will be guilty of. इसका करेक्ट आंसर है बी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मिसअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि एक बंदे को कोई प्रॉपर्टी मिलती है, वो उसका ओनर ढूंढ नहीं पाता, उसको पता भी नहीं है, वो ढूंढ भी नहीं पाता, एंड उसके बाद भी वो उसको डिसऑनेस्टली रखता है। तो वो क्या करता है, वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन करता है। वो किसी और का सपोज वॉलेट मिल गया रोड पे एंड उसको पता है ये एक है, उसके सामने जो चल रहा था उसका ही गिरा है, फिर भी वो उसको उठा के अपनी जेब में डाल देते हैं। तो इसने कोई फ्रॉड थोड़ा ना किया है ए के साथ। एक्सटॉर्शन और थेफ्ट का मतलब क्या होता है कि उसने ए के उसमें था, प्रॉपर्टी उसके पास थी, उसकी प्रॉपर्टी उसके पास से ली है, तो वो होता है थेफ्ट अगर वो पोजेशन में ए के होती। एंड एक्सटॉर्शन तब होता है जब वो ज़ोर ज़बरदस्ती से, फियर, कॉशन से उससे पैसे ले लेता। बट अगर उसको अब रोड पे ही वॉलेट गिरा हुआ मिला है एंड वो उसका ओनर उसके सामने ही चल रहा है, तो वो पोजेशन में तो है नहीं ओनर के, तो तब भी वो अगर रख लेता है, ओनर को वापस नहीं देता, तो वो क्या हो गया, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 77. लिक्विडेटेड डैमेजेस इज एसेंशियली। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है, इसमें वो एक प्री एस्टिमेट निकालते हैं कि प्रॉबेबल लॉस क्या होगा। तो जब दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अग्रीमेंट पे आती हैं, एंड उनको पता है कि अगर ए ने ये अग्रीमेंट नहीं अपनी निभाई, उसने अपना जो भी अपना पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट का वो नहीं अपने निभाया, तो बी को जो डैमेज होएगा उसके कॉन्सिक्वेंट, उसका एक प्रॉबेबल लॉस का एस्टिमेट निकालते हैं। और जो वो एस्टिमेट होता है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही कि अगर बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो इतने इतने अमाउंट के डैमेजेस जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जेन्युइन कोवेनेंटेड प्री एस्टिमेट ऑफ डैमेज। एंड अगर यही वो टॉर्ट्स में हो, सपोजिटली टॉर्ट्स एक सिविल रॉन्ग है, तो सपोजिटली किसी बंदे ने डेफेमेशन की एंड उसके लिए वो डैमेजेस क्लेम कर रहा है, तो यहाँ पर तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं होंगे ना, तो यहाँ पर वो बन जाएंगे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, क्योंकि वो पहले से थोड़ा ना सोच सकता है कि हाँ ठीक है ये मेरे को डिफेम करेगा तो मैं इससे इतने डैमेजेस लूँगा, ये थोड़ी ना होता है। तो अगर वो अनलिक्विडेटेड होता है तो वो कौन डिसाइड करता है, कोर्ट डिसाइड करती है। एंड जब वो कॉन्ट्रैक्ट में होता है, वो लिक्विडेटेड होता है, तो फिर वो प्री एस्टिमेट होता है डैमेज का, जब कॉन्ट्रैक्ट में आने वाली होती है पार्टीज़ वो तभी डिसाइड कर लेती है। क्वेश्चन 78. व्हेन एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन क्या होता है, सेक्शन 5 में ही दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कि एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो अगेंस्ट द प्रपोजर और अगेंस्ट द एक्सेप्टर ये दो चीज़ें हैं। एक होता है जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज किया, वो हो गया प्रपोजर, उसने दिया दूसरे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट कि तुम इसको एक्सेप्ट कर लो, वो हो गया एक्सेप्टर। तो अब अगर एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो वो कब तक उसको मना कर सकता है, रिवोक कब तक कर सकता है। सपोज ए पी ने लेटर भेजी कि ए को कि ये एक्सेप्ट कर ले, तो ए कब तक अपना एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। तो अगेंस्ट द प्रपोजर वो कब तक हो सकता है, जब तक वो ट्रांसमिशन में ना आ जाए, जब तक वो उसने भेज ना दी हो। और एक्सेप्टर के लिए वो कब होता है, जबकि वो एक्सेप्टेंस प्रपोजर की नॉलेज में ना आ गई हो। सपोज उसने लेटर भेजी अपनी एक्सेप्टेंस की, तो ए के अगेंस्ट वो कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक पी को वो मिल नहीं गई। एंड पी कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक कि ए ने उसको लेटर बॉक्स में डाला नहीं। तो 10 रेवोकेशन पॉसिबल बिफोर कंप्लीशन अगेंस्ट एक्सेप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। Question number 79. Which one of the following articles of the Indian Constitution belongs to a different category? So this is a very easy question. Article 14, 15, 16. 14 क्या है, equality before law. 15 क्या है, prohibition of discrimination. And 16 क्या है, equality of opportunity. तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी के अंदर। जो आर्टिकल 19 है ये क्या आता है, राइट टू फ्रीडम के अंदर, जिसमें हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं।
तो ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी? ऑप्शन डी आर्टिकल 19, बिकॉज ये फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज़ द रिट ऑफ क्वो वारंटो मीन? तो हम सबको पता है कि हमारे पास कितनी रिट्स हैं? 5 रिट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड। इन्होंने पूछा क्वो वारंटो का मतलब क्या होता है? तो क्वो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका लैटिन फ्रेज है एंड इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो जब भी एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करती है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस है, बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग दैट पब्लिक ऑफिस, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये इशू करते हैं रिट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इट इज़ इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑफिस होल्डर इज इलीगली होल्डिंग दैट पोजीशन। ठीक है। तो इसका जो बाकी ऑप्शन हम एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इंक्लूडेड क्या क्या होगा, जैसे कि अ पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट, या फिर उसने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को वायलेट किया है, तो वो इलीगली होल्ड कर रहा है अपनी एक पोजीशन को, तो वो हो जाएगा क्वो वारंटो की रिट इशू हो जाएगी उसके अगेंस्ट। सिमिलरली जो बाकी दो ऑप्शंस हैं, it is issued when a court wants to order a lower court or similar authority to transfer some matter pending before it to other courts or authorities। ये क्या हो जाएगा? ये काइंड ऑफ हो जाएगी ट्रांसफ़र जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन या फिर प्रोहिबिशन जुरिस्डिक्शन, कि वो प्रोहिबिट करेगी कि लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर ना पास करे। Similarly, it is issued by higher courts when they find that lower courts have made judgments beyond their powers of jurisdiction। ये क्या हो जाएगी? ये सर्शरारी हो जाएगी। सर्शरारी का मतलब होता है क्वॉशिंग पावर, तो किसी भी लीगल ऑर्डर को क्वॉश कर सकती है। दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन। रिट्स तो सभी पढ़ते हैं, 5 रिट्स हैं एंड ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु सेड दिस? देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इन बोरोइंग, इट इन्वॉल्व्स नो प्लेजरिज्म, नोबडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट्स इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है सी, बी.आर. अम्बेडकर। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था तो हमने काफ़ी चीज़ें बोरो की हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका। तो इसी रेफरेंस में बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने कि बोरोइंग अगर की है तो वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ इट। अगला क्वेश्चन है 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52nd अमेंडमेंट, जो कि हुई थी 1985 में एंड इसको अप्लाई किया था 1986 में। इसने क्या ऐड किया था? एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन 10th शेड्यूल। ठीक है। तो दिस इज रिलेटेड टू 52nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, 1986 में। क्वेश्चन 83, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज चैलेंज्ड इन जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया? इसका आंसर है सी, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2022 में ये केस था एंड इसमें क्या हुआ था? EWS की रिजर्वेशन जो थी 10% की, उसको चैलेंज किया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड है। क्वेश्चन 84, ऑन विच डे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वॉज गिवन? तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बनी थी हमारी केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में एंड इस केस की जो जजमेंट आई थी वो जजमेंट आई थी 24 अप्रैल 1973 को। तो इसी दिन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ले डाउन हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन 85, 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इसका करेक्ट आंसर है ए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही 9th शेड्यूल ऐड कर दिया था 1951 में। तो ये किससे डील कर रहा था? लैंड रिफॉर्म्स से, एंड लैंड रिफॉर्म्स को जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर निकाल दिया था। अब जो एक इम्पॉर्टेंट केस है वो है IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में क्या हुआ था? उन्होंने कोर्ट ने होल्ड किया था कि जो भी अमेंडमेंट्स 9th शेड्यूल में ऐड किए गए लॉज आफ्टर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाले दिन पे, उन सबको फिर भी हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर जुडिशियल रिव्यू में डाल सकते हैं। क्वेश्चन 86, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 21A डील्स विद राइट टू एजुकेशन।
एंड इट वॉज एडेड इन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए उन्होंने राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड की थी। क्वेश्चन 87, हु इज़ द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। तो यहाँ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब नाउ वी कम टू जूरिस्प्रूडेंस। तो हिस्टोरिकल स्कूल हमने पढ़ा है, किसने दिया है? सैविग्नी ने। सैविग्नी ने कहा था कि लॉ डेवलप्स फ्रॉम वोकजीस्ट विच इज स्पिरिट ऑफ द पीपल। एंड इसने हिस्टोरिकल रेफरेंस कैसे दिया था? कस्टम्स से, सोसाइटी से, कि लॉ धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व करता है थ्रू आउट द हिस्ट्री। बाकी भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे केल्सन ने क्या दिया था? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ग्रोशियस ने क्या दिया था? नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ। एंड ड्यूगिट ने क्या दिया था? सोशल सॉलिडारिटी। ठीक है। एंड हिस्टोरिकल किसने दिया था? सैविग्नी ने। क्वेश्चन 88, हु सेड दैट पब्लिक पॉलिसी इज एन अनरूली हॉर्स वेयर वंस यू स्ट्राइड ऑन इट यू डू नॉट नो वेयर इट्स गोइंग टू टेक यू। इसका करेक्ट आंसर है ए, जस्टिस बरो। तो जस्टिस बरो ने इसको कहा था इन द रेफरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है विच वायलेट्स द पब्लिक पॉलिसी, तो वो वॉइड हो जाएगा। अब जो पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन है ये कहीं डिफाइंड नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, कोर्ट्स का क्या रहना है कि वो पब्लिक पॉलिसी के अंडर डाल के उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जस्टिस बरो ने क्या कहा था कि वो अगर आपने पब्लिक पॉलिसी को यूज़ करते रहे इनडिस्क्रिमिनेटली तो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 89, हु रोट द बुक द कंसेप्ट ऑफ लॉ। इसका करेक्ट आंसर है डी, HLA हार्ट ने लिखी थी ये बुक, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 90, हु मेड अ स्टेटमेंट दैट सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज़ अ मिथ। इसका करेक्ट आंसर है ए, जेरेमी फ्रैंक ने दिया था सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज़ अ मिथ स्टेटमेंट। एंड अगर आप देखेंगे तो इसमें जेरेमी फ्रैंक पे ऊपर क्वेश्चंस बाद में भी आए हुए हैं कि उनकी जो मेन बुक्स थी वो क्या थी, ऑथर ऑफ लॉ एंड मॉडर्न माइंड। तो ये जेरेमी फ्रैंक की बुक है, लॉ एंड मॉडर्न माइंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, अकॉर्डिंग टू हुज थियोरी लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन इट्स नेचर, लाइक लैंग्वेज इट वेरीज विद पीपल एंड एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैविग्नीज थ्योरी। तो हमने सैविग्नी अभी ही पढ़ा है। इसने क्या बोला था? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। एंड एक जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है आप लोग वो नोट कर लीजिए, फोक्सजीस्ट। तो इसने बोला था कि स्पिरिट ऑफ द पीपल से ही लॉ डेवलप होता है ओवर द एजेस। कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब ही लॉ बनाती हैं। बेंथम की थ्योरी क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म। ऑस्टिन ने क्या दी है? कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरन। एंड मॉन्टेस्क्यू ने क्या दिया है? सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्वेश्चन नंबर 92, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज द यूनाइटेड नेशंस हैव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6। तो वेरी इजी क्वेश्चन। 6 लैंग्वेजेस है ऑफिशियल यूएन की, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। Question number 93, in which year was the UNO awarded the Nobel Peace Prize? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो 2001 में यूएन ऑर्गेनाइजेशन को और उसके सेक्रेटरी जनरल कोफी आनन को नोबेल पीस प्राइज मिला था 2001 में। ये क्यों मिला था? बिकॉज इन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी काम किया था। क्वेश्चन नंबर 94, Who was the first Indian to be president of United Nations General Assembly? इसका करेक्ट आंसर है सी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। She was the first Indian woman president of UN General Assembly and she was also the first Indian president, woman president of the United Nations General Assembly. तो फर्स्ट women president भी ये ही है, विजय लक्ष्मी पंडित। The non-permanent members of the Security Council shall be elected for. इसका करेक्ट आंसर है ए, 2 years। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स होते हैं P5, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, US, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये पूछ रहे हैं जो नॉन परमानेंट 10 मेंबर्स हैं
ये कितने टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं? 2 years के लिए इलेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ डैश ऑब्लिगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ सिविल ऑब्लिगेशन। मॉरल डेफिनेटली नहीं हो सकता बिकॉज मॉरल और लॉ एकदम अलग है। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिफाइन करता कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट दो लोगों के बीच में होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव भी नहीं होता। तो बेसिकली ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है सिविल ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि इसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है, डैमेजेस हो सकते हैं एंड ये लीगली एनफोर्सेबल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सिविल ऑब्लिगेशन। 97, when is the communication of a proposal complete according to section 4 of the Indian Contract Act 1872? इसका करेक्ट आंसर है सी। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अब है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? जब वो उस पर्सन के नॉलेज में आ जाए जिसको वो दिया गया है। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। सपोज ए ने कुछ प्रपोज किया है अग्रीमेंट, एंड जब वो बी के नॉलेज में आएगी तभी तो वो कंप्लीट होगा प्रपोजल। ऐसे कैसे कंप्लीट हो जाएगा? व्हेन इट इज़ डिलीवर्ड टू द बाय द प्रपोजर। ए ने छोड़ दिया प्रपोज करके, लेटर बॉक्स में लेटर डाल दी, तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा नहीं। व्हेन द पर्सन टू whom इट इज़ मेड एक्सेप्ट्स द प्रपोजल। अगर ए ने बी को प्रपोजल दिया एंड बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी नहीं, क्योंकि ये बहुत बाद की बात हो गई है। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड, जब बी को पता चला कि हाँ ए ने ये प्रपोजल दिया है, हाँ, तब से ही वैलिड हो गई है। सपोजिटली ए ने बी को लेटर भेजी एंड लेटर बी को मिलने से पहले ही बी को इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो भी वो कंप्लीट हो जाएगा प्रपोजल। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज एनीवन इन द कॉमन कंपनी ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड, नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर है सी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। Question number 98. Under the Hindu Marriage Act, the Sapinda relationship extends in the line of assent to. तो सेक्शन 3 हिंदू मैरिज एक्ट में सपिंडा रिलेशनशिप डिफाइंड है, जिसमें वो कहते हैं कि सपिंडा रिलेशनशिप में हमारे एंसेस्टर्स आते हैं एंड हम उन फॉर अ लीगल वैलिड हिंदू मैरिज उन लाइन ऑफ असेंट्स में आप लोग शादी नहीं कर सकते। तो उसका डिफाइंड है कि मदर में अप टू 3 generations एंड फादर में अप टू 5 generations शादी नहीं हो सकती। तो क्लोज ब्लड रिलेशनशिप्स नॉट अलाउड। इसका करेक्ट आंसर है सी, 3 degrees थ्रू द मदर एंड 5 degrees थ्रू द फादर। Question 99. The Supreme Court has set up a 5-judge constitution bench to hear petitions seeking legal recognition of same-sex marriages. The bench is set up by Chief Justice of India. Who among the following is not the member for the said constitutional bench? तो सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये केस कौन सा है। ये केस डील करता है सेम सेक्स मैरिज वाला, नवतेज सिंह जौहर वाला। एंड जो इन्होंने कमेटी बैठाई है उन्होंने बोला है कि चीफ जस्टिस तो इसमें है ही, तो बाकी मेंबर्स क्या है? आपको मेंबर्स नहीं याद, आपने ध्यान से एकदम तसल्ली से ऑप्शंस पढ़ने हैं। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़। जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ तो अभी है भी नहीं, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ है अभी चीफ जस्टिस। तो ये कैसे हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि उन्होंने पूछा इज़ नॉट द मेंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि ये डी वाई चंद्रचूड़ के भी फादर हैं। तो ये अभी कौन से बेंच पे बैठ रहे हैं, अभी कौन से कमेटी में बैठ रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, 100। द लीगल मैक्सिम रेस इप्सा लॉक्यूटर मीन्स। इसका करेक्ट आंसर है सी, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो जब कोई भी, सपोज एक बंदा है गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा है एंड उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो दूसरी पार्टी को नेग्लिजेंस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर उसकी स्पीड ही 120 की थी तो वो दिख रहा है ना, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ कि हाँ वो नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। एंड ये टॉर्ट्स में यूज़ होता है मोस्टली। Thank you. With this, we come to the conclusion of this video. I hope you liked it. Thank you.